Hello, beautiful souls. Welcome to my channel, Mystic Gani. So, today we are going to do a monthly reading for Cancer for the month of October 2025. As I said, this is a monthly reading, and in this reading, we will see the overall energy for the month of October, key challenges, obstacles, actions, advice, and strength and opportunities with a probable outcome. So, this is a general reading, guys. So, please take what resonates with you and leave the rest. For more accurate and personal readings, you can reach out to me. I have also posted October to December reading based on the zodiac signs on my channel. If you are interested in seeing what 2025 has for you at the end, so you can check that reading out according to your zodiac sign. And let's see. Let's see what do the cards have for you, Cancer. Overall energy in October 2025. Overall energy in October 2025. Okay. All right, let's see what are the key challenges or obstacles we have for Cancer in October 2025. Key challenges or obstacles for Cancer. Oh my goodness. What is the action or advice we have for Cancer for October 2025? Cancer, October 2025. Key challenges, sorry, actions or advice. Okay. What are the strengths and opportunities we have? What are the strengths and opportunities we have for Cancer? What are the strengths and opportunities we have for Cancer for October 2025? Strengths and opportunities for Cancer. Okay. Okay. Let's see the probable outcome in this situation. Probable outcome in October. Okay. Two cards flipped. I'll take both. Okay. I know where it is. Let's try one more time. If the card has to come, it will come. Yep, it came. So it had to come. So let's see. Okay. So the outcome, we have two cards. So let's see. All right. So the overall energy for you, Cancer, here is the Tower. So something is about to fall off so that something new can start. Okay. अगर मैं simple language में बोलूँ तो आपका कुछ belief system है, आपने किसी चीज़ पे it can be again आपके किसी भी एरिया में हो सकता है, लाइफ के किसी एरिया में हो सकता है, वर्क लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, लव कनेक्शन हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, so see how it connects with you. So something is about to fall off. Okay, something needs to fall off basically so that something new can start. There is a need कि आपको किसी चीज को ना, पुराने किसी चीज को आपको टूटने की जरूरत है, सो दैट आप नया कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर सको, नया कुछ बना सको. ओके, सो इट कैन बी अ बिलीफ सिस्टम, इट कैन बी आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे. आई डोंट नो, आई एम गेटिंग इट वेरी स्ट्रांगली कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे एंड दैट ट्रस्ट इज अबाउट टू बी ब्रोकन एंड आपको चीजें एकदम बहुत शॉकिंग मूवमेंट होने वाला है. बेसिकली अ टावर मूवमेंट इज लाइक समथिंग विच इज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और वो उस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही है. एंड आई स्ट्रांगली फील कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, और इट कैन बी फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, कि आपके ये इट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, इट्स कनेक्टेड टू योर लव लाइफ, इट्स कनेक्टेड टू योर टू अ कनेक्शन जहाँ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो देयर इज दिस एनर्जी ऑफ falling off of something so that something new can build. Okay, so this is not an easy thing to deal with. Okay, because आप अगर किसी के कहीं से आप नीचे आते हो तो वो बहुत पेनफुल एनर्जी होती है, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है. तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको ये देखना है कि वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है. वो जो चैलेंज आया है, जो सिचुएशन है, ये वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है. इज इट कि आप आपका कोई पुराना तरीका है जो आप अभी भी चीजें पुराने तरीके से करते आ रहे हो, एंड नाउ यू नीड टू reframe your way of doing thing, or reframe your belief, और आपको कुछ change लाने की जरूरत है. It can be bringing a change into a family tradition for some of you. I'm getting it can be starting something new altogether. Okay, आप अपना maybe आप career shift कर सकते हो completely. Maybe आप जॉब से आप चेंज करके अपना खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो. समथिंग it needs to end and something new needs to build up. Okay, so उस तरह की एनर्जी है. So just try to understand कि सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है, and you need to focus towards the hope, not towards
your falling off thing. Okay, you don't have to be in that victim mindset ki this happened to me and how will I deal with it. You don't have to cry over it, because if you will cry over it, you will not be able to see the positivity from the situation. Okay, आई नो ये बोलना ईजी होता है, बट जब आप ऐसे सिचुएशन से डील करते हो तो ऑल योर फोकस इज दैट एवरीथिंग हैज फॉलन ऑफ. बट कभी कभी हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की जरूरत होती है ताकि हम नए नए नजरिए से चीजों को देख सकें, राइट. सो उस तरह की एनर्जी है. The key challenges or obstacles is I see that there is this painful energy. It can be, again, as I said, कि for some of you it can be the tower moment is the same thing कि आपका कुछ आप किसी पे blindly trust कर रहे थे और वो trust might not be the right thing for you to do. Okay, blindly trust करना जरूरी शायद आपके लिए was not the thing for you to do. Okay, that is what I am seeing. So there is this energy of पेन. ओके, सो आप हो सकता है आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप आपको हील करने की जरूरत है. आप अपने मन में बहुत ज्यादा यू हैव सो मच ऑफ पेन इन योर हार्ट एंड यू आर नॉट एबल टू हील इट. सो अगर आप, जैसे मैंने बोला, अगर आप विक्टिम माइंडसेट में रहोगे, अगर आप इफ यू विल कीप ऑन क्राइंग, आप हील नहीं कर पाओगे. सो टू हील योर सेल्फ you need to release your emotions, and now to release your emotions you need to express it sometimes. अगर आप किसी से बोल के आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, कोई है नहीं, आपको ऐसा लगता है कि कोई समझेगा नहीं, देयर इज नोबडी अराउंड जिससे मैं अपने मन की बात शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. यू नीड टू राइट इट डाउन. आप उसको राइट करो किसी पेपर में एंड बर्न इट ऑफ. ओके, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिलीज योर हिडन इमोशंस एंड योर पेन. Okay, so you need to deal with this situation and mainly focus on self-love, self-healing, and releasing the past wounds and past trauma. That is what I am getting. Action or advice for you is, again, you need to change your perspective. You need to see things from a different angle. जो हो गया वो हो गया, right? आप उसको बदल नहीं सकते हो. All you can do is try to start something new. As I said, कि आप हो सकता है आप अपना completely, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी आप अपना नया फील्ड एकदम स्टार्ट करने की सोच रहे हो. इट कैन बी अगेन लीविंग अ जॉब एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और इट कैन बी हैविंग द जॉब, हैविंग अ परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम, एंड साइड हसल में आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो जिसके लिए आप यू ऑलवेज हैड एन इंटरेस्ट इन. इट कैन बी स्टार्टिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया, स्टार्टिंग समथिंग न्यू जो आपकी हॉबी रही है, आप उसको एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म के एज ए प्रोफेशनल आप उसको स्टार्ट कर सकते हो करना. मे बी आई ऑल्सो सी दैट यू आर नॉट you don't have to be restricted, you don't have to be in this energy of staying back or stuck energy. Okay, आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके, अपना नजरिया चेंज करके बहुत आगे की सोचने की जरूरत है. बेसिकली यू नीड टू बी फोर साइटेडनेस, you need to have that. Okay, that is what I'm getting. Also, the strength and opportunities is, again, whatever has happened. Okay, again, the hermit card is basically not able to express the emotions. That's what I'm getting in this card, कि आप अपने emotions को डील नहीं कर पा रहे हो या हील नहीं कर पा रहे हो इमोशन से. सो यू नीड टू release your hidden emotions, you need to release your frozen emotions. Okay, जो भी आपने जो भी अभी तक लेसन सीखा है, हो सकता है जब आप उसको राइट डाउन कर रहे हो, आप किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, तो वो पर्सन को हो सकता है वो पर्सन भी वही मिस्टेक नहीं करे जो जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो. सो यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू माइट do to other person by sharing right things. So you need to release your frozen emotions, you need to understand from your experiences. As I said, आपका जो भी belief system टूट रहा है या जो भी पहले का है जो अभी तक चलता आ रहा था और अब आगे नहीं चलेगा, so you need to learn your lesson from it. You need to be in the hermit mindset, और hermit mindset होने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को distant करने की जरूरत है, so that you can understand your emotions कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, what is that your soul is trying to convey. ओके, आपको वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा सॉलिट्यूड में जाने की जरूरत है. अगर आप ऑलरेडी नहीं हो, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इस मोड पे चले जाओगे. लाइक दिस मोड इज लाइक बेसिकली कीपिंग योरसेल्फ अवे फ्रॉम द क्राउड. ओके, आप भीड़ भाड़ में आप रहोगे तो आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे, आप हील नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे सिचुएशन को. सो टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो, उन सब चीज़ों के लिए आपको बाहर की दुनिया का नॉइस को हटा के आपको अंदर की आपकी इनर वॉइस को सुनने की जरूरत है. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, कैंसर. ओके, नाउ द आउटकम हियर इज अगेन, सो यू माइट हैव सो मेनी ऑप्शंस बेसिकली. तो देयर आर चांसेस कि एज आई सेड,
आप हो सकता है आप पुरानी एनर्जी में वापस जाने का भी ट्राई कर सकते हो, या फिर आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हो. दैट इज वॉट हियर इट वॉज कमिंग नाउ. I don't know how it's connecting here, but everything is a clear story that आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, आपको अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है, आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है, और टेम्पररी कनेक्शन से बचने की ज़रूरत है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग. सो देयर इज़ अ चांस कि somebody might approach you, or you might feel attracted towards someone, and somebody might approach you. तो आपको ये देखना है कि is it a temporary thing, is it a attraction, or is it actually love? Okay, so you don't have to get into this energy of a temporary connection before you heal yourself. Okay, that is what I am seeing for you. So you need to keep yourself away from distraction and focus towards your own growth, focus towards your healing energy, and working on yourself. Okay, that is what I am getting. So you too, maybe for some, कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने इमोशंस को समझना नहीं चाहते और हम अपना माइंड इधर उधर लगा लेते हैं चार चीज़ों में कि मेरे पास टाइम ही नहीं हो कि मैं अपने इमोशंस को फेस करूँ. सो उस वजह से भी हम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं ना. वो हो सकता है हम अपने वर्क लाइफ में बिजी हो, हम अपने आप को फ्रेंड्स लोगों से सराउंड कर लेते हैं, या फिर हम टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर फॉर यू. Okay, so let's see what's the guiding message for you, Cancer. Let's see. Okay, snake. Yeah, see, shed the old skin. It's no coincidence. It's a confirmation that आपको कोई आपका पुराना belief system तोड़ के चीज़ों को नए तरह से देखना है और नए तरह से start करना है. It's like for some of you it can be जब आप इस painful energy से deal करोगे, so you might realize something when you are in this hermit zone. You can आप किसी तरह को रियलाइजेशन होने के भी चांसेस है. रियलाइजेशन इज बेसिकली सेल्फ अवेकनिंग. हो सकता है आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव, एज आई वाज सेइंग राइट, कि नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, तो आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी. यू नीड टू ड्रॉप ऑफ योर ओल्ड पैटर्न्स एंड यू नीड टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम अ न्यू विद अ न्यू एनर्जी, विद दिस न्यू व्हाट यू से, नए तरह से चीज़ें को शुरू करने की ज़रूरत है, नया नया कुछ क्रिएट करने की, नया कुछ बनाने की ज़रूरत है. आप जैसे मैंने बोला, आप सम ऑफ यू आप कुछ नया स्टार्ट भी कर सकते हो, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर करेंट फील्ड ऑफ वर्क, राइट. सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, दैट यू नीड टू वर्क ऑन चेंजिंग योर ओल्ड पैटर्न टू समथिंग विच इज अडेप्टेबल, मोर अडेप्टेबल टू द कमिंग चेंजेस, टू द कमिंग टाइम. जो भी अभी चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको अडेप्ट करने की ज़रूरत है. So that is a reading for you, Cancer. So it's a bit a dicey month for you, I see. Maybe for some of you, you might go through a self-awakening, self-realization kind of, time you may have. This may be for you this October month. So don't give up. थोड़ा सा loneliness feel होता है कभी कभी, but you don't have to let it overpower you. Okay. So once you know how to deal with it, आप इस सिचुएशन से बहुत इजीली और बहुत आपका एक नया बेटर वर्जन आपको मिलेगा, इफ यू नो हाउ टू डील विद इट एंड try not to get distracted by the temporary things. Okay, so that is what the message here is for you, Cancer. If you have liked it, please do like this video, and if you have not subscribed to my channel, I request you to please subscribe to my channel for daily tarot insights. Bye bye.